So we have all joined today to start our learnings on technical analysis, technical trading. One thing is definitely common between all of us, that we all want to make it big in the financial market or in the field of trading of financial assets. Okay? I have been doing this since 2002, 2003, heavily doing this from 2005 onwards and never looked back. All the learnings that I've managed all these years in the best of the bull markets of 2005, 6, 7, worst of the bear markets in 2008 and March of 2009. So whatever I have gathered, whatever all mistakes that I've made, all the mistakes are part of this AST. So that at least you don't make those mistakes. Okay? Books, websites, references, everything I will give you in a staged manner, class by class. This course also you can sit for the NSE Academy NCFM test and get the certificate from NSE Academy. उसका भी मैं details आपको one-on-one share करते रहूँगा. ठीक है? Now you have all shared your details, your introduction on the WhatsApp group. Very nice, interesting group. One person is a bartender. Couple of hardcore traders here. आप अभी तक group में नहीं आए हो. हाँ, तो there are a couple of very hardcore traders who have more experience than me, who have traded in the market. So very nice mix. So it will be good to share and learn. You know, if you try on your own, you will. Someone is from the gym. You run a gym, right? Yes, he runs a gym. So very nice mixture of traders. So let's make the most out of it. Do not hesitate to ask questions. Ask as many questions as possible. Not a problem at all. Right? So technical analysis. All these scribbles that I am going to make, these are your class notes. Do not write anything. Just be with me on Suniye Mujhe. Listen to me. Be with me for 2 hours. Ask questions. All these class notes मैं आपको PDF करके भेज दूंगा. कुछ करना कुछ नहीं है actually. हो सके तो be as much as possible with me. You'll gain the most. या फिर you can take a nap also. But I'll suggest do the first one. करना कुछ नहीं होगा. Just focus with me. I want to follow you religiously. Bas, technical analysis. So technical analysis, what does it mean, or what kind of school of thought is this? See, हम लोग, अच्छा, sorry, the last one I forgot, very important, language. I will be speaking mainly in English and Hindi mix. If there is anyone who has a problem with Hindi, सामने से बोल दीजिए. मेरे साथ ये पहले हुआ है. It has happened with me. Half of the day I've taken the program. Then he comes to me and tells me मुझे English समझ में नहीं आता है. So please आपको सामने से पहले बोल देंगे तो I'll prepare accordingly. Generally my tendency रहता है कि मैं English and Hindi mix करके I take the classes. At times Bengali, if someone is asking a question in Bengali, I will repeat the question in Hindi and English so that everyone understands the answer. Anything, any language, anyone? Sure. This is okay? At any point of time, अगर आपको लगता है my pace is too slow or too fast, you also tell me that. So, technical analysis. If I ask you, which is the oldest exchange in Asia? Can you tell me? BSE? Bombay Stock Exchange? What is the age of Bombay Stock Exchange? Bombay, anyone from the online participants? Without doing a Google? 100 years. More than 100 years. BSE is 142 years old. इनफैक्ट जब इनका 140 साल का हैप्पी बर्थडे हुआ था, मैं अपने डलहौसी ऑफिस से ही उनके लिए एक 5 मिनट का वीडियो बनाया था फॉर BSE यूट्यूब चैनल. सो दैट वाज 2 years बैक, 2015. दिस ईयर दे विल टर्न 142 years. 142 years पहले एक एक्सचेंज बना था. एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग, द स्टोरी गोज दैट देयर वाज अ banyan tree. ऑन banyan tree के नीचे कुछ लोग आए थे and वो लोग decide करके they started an exchange. Why? 142 से 42 निकाल देते. Let's stick to 100 years. 100 साल पहले एक exchange था.
India mein and various parts of the world. People used to trade, invest, transact. Why? What is their objective? Why? Why will 100 years back there was an exchange? Why will people trade? नहीं समझ में आ रहा है? मैं आपको भी पूछता हूँ. Why are you join this course? Why are you in the stock market? To make a life. To make a livelihood. उसको और ग्रैन्युलर लेवल पे तोड़ दे तो टू सिंपल ना. अब मैं आपको वही क्वेश्चन अब पूछता हूँ. 100 साल पहले वो लोग क्या कर रहे थे? व्हाट वर दे डूइंग? व्हाई? सी कितना इजीली अभी आंसर कर दिया. व्हेन यू पुट योरसेल्फ इन पर्सपेक्टिव फर्स्ट टू अर्न मनी, देन दे आल्सो केम टू अर्न मनी. 100 years in the future हम लोग तो नहीं रहेंगे, बट कोई ना कोई रहेगा. हाई चांसेस द एक्सचेंज विल बी आल्सो बी देयर. Why will people to earn money? Same. So to earn money is the objective. इसमें कोई डाउट नहीं है. Now 100 years back, did they used to look like us? हम लोग जब ऐसे दिखते, the clothes we wear and the way they used to look very different. Not very different, but their clothing, everything, both baths, बहुत different था. आज different है. 100 years in the front also it will be different. They didn't have calculator, laptop, iPads, nothing, smartphones. Now we have everything. In those days किसी भी कंपनी का डिटेल्स निकालने के लिए you have to do a lot. Now you can do it on your smartphone. 100 years आगे क्या पता क्या होगा, लेकिन 10 साल में क्या होगा मैं ये बोल सकता हूँ. I can tell you at least with what will happen in the next 5 to 10 years in our at least financial markets. High chances it will happen. You see any laptop, any Windows laptop, you will find there a sticker Intel inside. Ting 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 ting. ठीक है, Intel inside देखा स्टिकर. कुछ सालों में वो Intel inside आपका inside में होने वाला है. So there will be chips planted inside you. You will be wired. You will be seated in your dealing room in a nice cushy chair. You will be tracking the markets. And let's say you close your eyes and you say, जैसे हम लोग OK Google, Hello Siri करते हैं ना Android में और Mac में, you'll say OK dealer, buy TCS. और बोलना भी नहीं पड़ेगा. Probably आप आंख बंद करके सोचोगे TCS, कबूल कबूल कबूल, हो गया. Highly possible. Work is being done in these lines that you also don't. पहले लोग चिल्लाते थे जाते थे, अभी चिल्लाना बंद हो गया. बटन दबाओ, अभी बटन दबाना भी बंद हो जाएगा. बस पढ़े रहो. आपका सोच, your thoughts will be read and people will be trading. Why am I saying all this? The objective will never change. Look at the outside world. Outside world has changed completely. So externally everything has changed. Internally nothing has changed. Internally objective वही का वही रह गया. Externally सब कुछ चेंज हो गया. So if I ask you 100 years back, if 5% of the traders used to make money, 100 साल बाद with so much improvement in the external world, can I say 10% of the people make money or 50% of the people make money? No ना. या कैन आई से कि एक्सटर्नली तो कितना इंप्रूव हुआ है, 100 साल में और भी इंप्रूव होगा, मतलब और भी लोग ज्यादा पैसा कमाएंगे? नो. इट विल ऑलवेज स्टे विद इन अ रेंज ऑफ 5 to 8%, 10% मैक्सिमम. ट्रेडिंग में more and more people will not be making money. It will always, the ratio will always be the same. Why? Because trading has got nothing to do with the external. It has got everything to do with the internal. Everything. So if you think मैं बहुत अच्छा एक टेक्निकल प्रोग्राम ज्वाइन कर लूंगा या बहुत अच्छा एक्सपेंसिव सॉफ्टवेयर खरीद लूंगा या कहीं पुणे, बॉम्बे, लंदन जाके I'll do a very good fundamental course. There are courses, programs which are superly expensive. तो वो करके मेरा नैया पार हो जाएगा. इट इज नॉट गोइंग टू. अगर उतना इजी होता तो वो लोग सिखाते ही नहीं. राइट. सो ऑल दीज थिंग्स, फंडामेंटल्स, टेक्निकल्स, एल्गो, एवरीथिंग, दे आर ऑल गोइंग टू गाइड यू, not make you. So this you have to focus on.
So what we will do in AST, 8 classes back to back, 4 weekends, we will do a mix of both. Externally, matlab, we will look into the theories, which we will do in the first 3 to 4 classes. We will look into those theories which can be executed. बेकार का theories हम लोग नहीं करेंगे. Which can be practiced, जो कि किया जा सकता है. We'll focus on that. Not only would we read them, understand them, we will also implement them. हम उनको implement भी करेंगे. This all entire working we will share and we will evolve धीरे धीरे. That's our objective. Clear? Now, let's say I take a stock, let's say Tata Motors. Tata Motors. Tata Motors क्या करता है? आप बोलो what's your good name? गणपति. What's your Tata Motors क्या करता है? They make the What? Tata cars and that. Tata cars, sure na? So Ganpati seated in front of me says that Tata Motors गाड़ी बनाता है. अच्छा ही गाड़ी बनाता है. जेला खरीद लिया उन्होंने. But Tata Motors or any other company at one point of time had done this initial public offering. Why? Because they need capital to grow. ठीक है? They come out with shares which they give it to the public, and we become their shareholders. And in the secondary market, we are doing the transaction. ये जब पहली बार अपना IPO करके कोई एक्सचेंज में लिस्टेड हुआ, तो उसका पहला दिन था. First day trades in the. चलिए देखते हैं when was it. So I come to this software. This is Iris Plus software. We will get it after our 4th class. क्योंकि अपने को सिर्फ 20 दिन के लिए ये मिलेगा. So let's say I open any chart. I open Tata Motors. ठीक है? And मैं इसका पूरा हिस्ट्री देखता हूँ. This is the entire history of Tata Motors. And I check कि ये NSE में around December 2000 से आया है. NSE में. Since then, since December 2000, every Monday to Friday, जब भी trading था, Tata Motors has opened at a certain price, had gone to a certain highest point, has gone to a certain lowest point, and end of the day it has closed at a certain point. इसको हम बोलते हैं open, high, low, close. And this, my friend, is the most important parameter to deal with. भाव भगवान. Price के 4 अंग है, open, high, low, close. ठीक है? Very simple, very elementary. Now this open, high, low, close is being tracked from December 2000 till yesterday. And ये सब recorded किया हुआ है. So I can have an Excel sheet जहाँ पे मेरे पास, let me quickly open and show it to you. Let me quickly open an Excel sheet which I will be able to show you. What I am trying to data representation. So this sheet will show you that any exchange का एक बहुत अच्छा revenue आता है data बेच के. Exchange का they make a decent amount of revenue by selling authentic data. उनके पास ही data है because they are the exchange. So there'll be dates. There'll be open, high, low, close. And इसको क्या हम एक ग्राफ में प्लॉट कर सकते हैं? Is this a 2-dimensional graph? On one axis, I am looking at price, and on the other axis, I have time. And what do I have? I have a chart, a price chart. एक टेक्निकल एनालिस्ट का काम क्या है? इसी प्राइस चार्ट को एनालाइज करना. So this is the sheet that is opening up. It's got enough, I think, nifty open, high, low, close data. There you go. So what I've done, I've just picked up
the date, open, high, low, close, and volumes. Volumes is what? Number of shares exchanged hands. Number of shares exchanged hands. This data, price broken down into 4 parts, and volume data, bus. This is what a technical analyst needs, or kuch nahi. This is the real data from 2002 all the way, I think I have it for August 2015. ये डेटा को अगर if I give it a form of a graph, how will it look? It will look like this. This is the actual line graph of Nifty. Actual. A work of a technical analyst is what? Analyze this graph. What is it? 2-dimensional picture. 1 dimension time जो बढ़ते ही रहता है हमेशा, दूसरा dimension में price. A picture speaks more than 1,000 words. अगर मैं आपको बोलूं 2008 जैन ये हुआ था, फैनी फैकी ये हुआ था, लीमन ब्रदर्स बस्ट हो गया था, ऐसे ऐसे, इफ आई टेल यू वर्बली यू विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड. बट इफ यू आस्क मी 2002 से 2015 तक निफ्टी का क्या हुआ था, ये लो अब देखो इसको 10 सेकंड 15 सेकंड, यू मोर और लेस गेज, समझ में आ गया यार क्या हुआ. A work of a technical analyst therefore is to analyze this. Now I ask you a question. This is past, purely past, authentic past. क्या past को देख के future predict किया जा सकता है? Share your views. Yes, sure. Up to some extent. Up to some extent. I'm asking, क्या past को देख के future predict किया जा सकता है? Up to certain extent. So one of the theories of technical analysis which says that yes, we can look into the past, and to a lot of extent the past will help us to give a nice judgment about the immediate future. क्यों पता है? अगर आप बोल रहे हो yes, those who said yes, क्यों यार? मतलब आपका past, your 5 years last past देख के क्या मैं बोल सकता हूँ आपका next 1 year में मार्केट तो हिस्ट्रिकली रिपीट कर जाता है. क्यों? Correct. He's got a good point. Your name? शुक्रिया. Vishwapriya. Vishwapriya got a good point. It's there in the slides that I'll share with you. He says that history repeats itself. और अगर history repeats itself करता है, if I know that history repeats itself, then obviously past देख के तो मैं future predict कर ही पाऊंगा. क्या history repeat करता है? It also repeats its trend. So my question is, क्या market में repeat होता है? और अगर होता है, if you say yes होता है, क्यों होता है? क्यों भाई? क्यों बार बार एक ही चीज repeat हो रहा है? लोग सीखते नहीं है क्या अपने mistake से? Human psychology doesn't change. Good. Human psychology does not change. Very good point. और कुछ? Anything else? You try and understand. In couple of slides back, we did that 100 years back story. ठीक है? Making money objective कभी change नहीं होने वाला है. 5%. And 5 to 8% traders will always win. Consistently win. जब बुल मार्केट आता है तब थोड़े लोग और ज्यादा कमा लेते हैं, वो ठीक है, बनता है. But this objective of making money will never change. And from that, the two main factors of psychology, of a trader's psychology, will never go away. Greed and fear. This will never go away, no matter what your size is, no which country you are, what is your religion, कभी नहीं. So इसके कारण, because the psychology never changes, इसके कारण we tend to see patterns and cycles. के यूएस मार्केट का 8 साल का इक्विटी बुल रहता है, तो 1.5 से 3 साल का बेयरिश रहता है, फिर से 8 साल का रहता है, फिर से हमेशा 8 7 नहीं होता है, बट वी सी ट्रेंड्स, वी सी cycles. That's why history tends to repeat itself, and that's why technical analysis as a subject has a edge, has a possibility to go right. There are school of thoughts जो बोलता है ये एकदम बेकार है, तुम चार्ट देख के कुछ नहीं बोल सकते.
उसको कॉन्ट्राडिक्ट करने के लिए और एक भी स्कूल ऑफ थॉट है जो कि इसके बेसिस पे इट सेज दैट इट इज पॉसिबल एंड व्हाई इट इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ दिस. नाउ लेट्स लुक इनटू सम चार्ट्स बिफोर वी गो टू डाउ थ्योरी एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा. लेट मी ओपन, ये चार्ट तो फिर भी कुछ है इसमें. लेट मी ओपन अ वेरी क्लीन चार्ट. You will be getting this software, so hold on. मैं एक काम करता हूं, नीचे this is the chart of Nifty. This is the daily chart. मैं एक एक करके आता हूं एक एक पैरामीटर्स पे. नीचे जो हिस्टोग्राम जैसा दिख रहा है ना आपको, वॉल्यूम्स, एक स्टॉक, किसी भी स्टॉक खोल लेते, लेट्स से बहुत भागा ना एनएचपीसी. एनएचपीसी का हिस्टोग्राम देखिए 2.59 CR क्रॉस, मतलब 2.59 क्रॉस का वॉल्यूम हुआ था फ्राइडे को 13/1/2017. ओपन हुआ था 30 रुपए, हाईएस्ट पॉइंट गया था 30.15, लोएस्ट पॉइंट वाज 29.05 एंड क्लोज इज 29.25. सो ओपन हाई लो क्लोज with volumes. This dimension is price, this axis is time. बस elementary. Now what I do, I'll just show you. ये हो गया open high low close of Friday, one day. That's why this is a daily chart. I can change it to weekly chart. मतलब now in this candle, we will be doing in details candle. In this one, ये जो open high low close है, ये week का हो गया. मतलब मंडे का ओपन, फ्राइडे का क्लोज. Between Monday and Friday, whatever was the highest point, between Monday and Friday, whatever was the lowest point. This is weekly open high low close and weekly volumes 12.69 crores. मैंने 5 दिन को क्लब करके एक हफ्ता बना दिया. यहां खत्म नहीं होता है, मैं वीकली से मंथली जा सकता हूं. दिस इज 1 मंथ. अभी यहां पे कर्सर रखता हूं तो यू फाइंड दैट दिस इज 13/1, सो दिस इज जनवरी. ये जब जैन खत्म होगा तभी जाके नेक्स्ट कैंडल आएगा. दिस वाज दिसंबर, दिस वाज नवंबर एंड सो ऑन सो फोर्थ पीछे करके. लाइक दिस आई कैन go to the quarterly chart, I can go to the half yearly chart, and I can at max go to the yearly chart. This is एक साल, ये just चालू हुआ है. So this was last year of NHPC. Let me go back to the daily chart. Let me quickly in this software plot some cash market intraday data. ये मैं क्या कर रहा हूं, इससे क्या होगा मैं आपको दिखाता हूं. As you can see कि dates read हो रहे, dates are getting read. लास्ट 27 दिन का वो इंट्राडे डेटा रीड कर रहा है. व्हाट इज इंट्राडे? इंट्राडे इज विच इज लेस देन 1 day. That's right. So now if I go to 60, now each and every candle is 60 minutes. If I go to 1, each and every candle is 1 minute, 5 minute, 10, 15, 30, 60. Now ये बहुत एलिमेंट्री लगेगा, बट जब मैं इसको देखता हूं आई फील टेरिफिक. आई डोंट नो, इन अ वेरी गुड सेंस. मतलब क्या है, वी टेक्निकल ट्रेडर्स कैन लिटरली प्ले विथ टाइम. प्ले विथ टाइम मतलब स्टॉक वही है एनएचपीसी, ओपन हाई लो क्लोज मार्केट ही देता है, मेरे हाथ में कुछ नहीं है, वॉल्यूम भी मार्केट देता है. फिर मैं क्या कर सकता हूं, मैं किसी भी टाइम फ्रेम में इसको प्लॉट कर सकता हूं. मैं अगर इसको, इफ आई मेक इट 10 minutes, then I am plotting the open high low close of 10 minutes with the volume of 10 minutes. If I make it monthly, I plot the open high low close of the month with the volume of the month. This is extremely powerful. Why? सोचिए, what's your name? Shravan. Shravan wants to become a trader with us at Credent. He wants to become a pure intraday trader. उसको पोजिशनल अच्छा नहीं लगता है, उसको ओवरनाइट रिस्क अच्छा नहीं लगता. उसको फंडामेंटल या दूसरा कुछ करके फायदा होगा क्या? वो मंथली चार्ट देखेगा? वो क्या देखेगा? इंट्राडे चार्ट देखेगा. कैन टेक्निकल एनालिसिस सपोर्ट हिज ऑब्जेक्टिव? उसका जो ऑब्जेक्टिव है, मुझे एक ट्रेडर बनना है, इंट्राडे ट्रेडर बनना है, क्या टेक्निकल एनालिसिस उसको हेल्प कर पाएगा?
अरूप says I am not a, मुझे इंट्राडे ट्रेडिंग में बहुत फ्लक्चुएशन होता है, प्राइस के फ्लक्चुएशन के साथ मेरा हार्ट बीट का पैल्पिटेशन होता है. नहीं सर, होता है, हो ही सकता है, एवरीवन इज नॉट द सेम. मेरे से ये नहीं होगा. आई एम अ लिटिल लेड बैक. मैं 3 महीना 3 साल काइंड ऑफ ट्रेड्स करना चाहता हूँ. विल ही लुक इनटू 10 मिनट 5 मिनट चार्ट्स? ही विल बी लुकिंग इनटू वीकली चार्ट्स, मंथली चार्ट्स. Can technical analysis provide him that information? Yes. Now, the bottom line, why I like and love it so much, is no matter what we all of us in this batch have different styles. So whatever be your style, whatever be your risk appetite, whatever be your capital size, आप मार्केट में आ सकते हो and technical analysis will be able to guide you. उससे आप तोड़ोगे या बनाओगे वो बात का बात है. बट क्या टेक्निकल आपको बोलेगा नहीं नहीं, लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं इंट्राडे करना चाहता हूं बट मुझे फंडामेंटल बहुत अच्छा लगता है, कर पाएगा? नहीं कर पाएगा. फंडामेंटल तो जब तक आता है एक क्वार्टर में पहली बार, वॉट एवर न्यूज एंड कम्स, इट्स स्टेल, राइट? सो दिस इज द बिगेस्ट स्ट्रेंथ ऑफ टेक्निकल. नो मैटर हु यू आर, व्हाट इज योर कैपिटल साइज, व्हाट इज योर रिस्क एपेटाइट, व्हाट इज योर फिलोसफी, आप सामने सौंप दो खुद को मार्केट के सामने, खुद को जान लो, नो योर सेल्फ, टेक्निकल विल गाइड यू द रेस्ट. इसके ऊपर अगर आपका फंडामेंटल अच्छा है, इट्स वेरी गुड एडिशन. और वाइसी वर्सा, अगर आपका फंडामेंटल बहुत अच्छा है, आपके पास यू हैव 50-60 वेरी गुड फंडामेंटल स्टॉक्स, उसको आप टाइम करना चाहते हो, देन टेक्निकल इज अ वेरी गुड टूल. टेक्निकल विल हेल्प यू, टेक्निकल विल डेफिनेटली हेल्प यू टू टाइम द मार्केट. If you understand nothing of fundamentals, like someone like me, does not matter. You need to be very good in what you're doing. A lot of students ask me, sir, techno funda is far better than only technical or only fundamental. Again, it depends. I have seen senior people after 15 years of fundamentals going into technicals. And ulta bhi. And obviously, बीचों बीच वो भी है. Don't go by any defined rule, figure out what suits you best. और वो कैसे पता चलेगा? How do you define what suits you best? It's by experience. बताओ. सोचो नया रेस्टोरेंट खुलता है और मैंने आपको बोलता हूँ हाँ ये रेस्टोरेंट तो इसका खाना ये अच्छा है. कोई एक बोलता है नहीं ठीक ठाक है, इसका उसमें बहुत तीखा है. हाउ विल यू नो एक्चुअली उस रेस्टोरेंट का खाना अच्छा है? हाउ विल यू नो? बस एक बार जाएंगे, टेस्ट करेंगे, टेस्ट करेंगे तब पता चलेगा. सो इन दिस केस आपका सोच कुछ एक रहता है. लेट्स से आपको लगता है आई वांट टू डू इंट्राडे ट्रेडिंग, क्या थ्रिल है यार, क्या मजा है. उससे नहीं होगा. यू हैव टू डू इट. जब फटेगी तब लगेगा अरे नहीं मैं कुछ और ही करता हूं. सो यू हैव टू डू इट. ठीक है? दैट्स व्हाई इन AST what we will do स्पेशली विद ऑफलाइन विद इंटर्नशिप, हम आपसे करवाएंगे. फॉर ऑनलाइन पार्टिसिपेंट्स स्ट्रॉन्ग सजेशन, आप भी थोड़ा बहुत हमारे साथ करते जाइए, बिकॉज दैट इज वेयर द लर्निंग विल बी मैक्सिमम. आप सुन रहे हो मुझे? फिर 5 to 15% रिटेंशन रहेगा 4 बजे के बाद. अगर ये सेम चीज मैं आपको सम अदर वे करवाता तो वो 50% रिटेंशन होता. So that is our objective. So 100% सिखाना पड़ता है. It is biologically, scientifically proven that if you want to be a master of any subject, anything, the best way to master it is by teaching. For that, you need a little bit of bravery. For me, I'll just give you my example. I'll be very honest. I'm doing this, looking into charts for very many years. आप रात को 3 बजे मुझे फोन करके कुछ बोलो, मैं बोल दूंगा टेक्निकल. ठीक है? But there can be algo trading, or there can be quantitative finance, या there can be, let's say, advanced options. ये options आता है. But extreme, advanced, complicated strategies, मुझे I've not done it, right? So I'm not very comfortable. I will become a master of that only if I take the step of teaching it. So I don't know anything about advanced options, और परसों मुझे advanced options सिखाना है. तो बीच का जो टाइम है उसको मैं कैसे यूटिलाइज करूंगा? सीख. The more we teach, I have learned maximum from my trainings.
So is this a passion or what? मतलब कि for mastery? आपको लगता है that you've joined AST, you will learn something from me? Yes. Again, I'll be very honest. I'll learn 3 times more out of you. अच्छा, मैं एकदम भी मजाक नहीं कर रहा हूँ. You will share your ideas. You will share that. I have learned. Most of the students join me in my internship and in my firm. But what happens is I learn a lot from them. Most of my successful stock pickings are done by my students. Again, फिर से मजाक नहीं कर रहा हूँ. I'll give you one example. मैं अपना portfolio खोल के दिखा भी सकता हूँ. I have this stock called Ujas in my portfolio. ठीक है? One of my student, again, my student starts from 19 years to 69 years. So ठीक है? He is 52. He held this stock throughout, and he kept on telling me इसको थोड़ा देखना, इसको थोड़ा देखना. मेरे रडार में नहीं था ये स्टॉक. उनके कारण मैं ट्रैक करना चालू किया. मैं घुस गया. Now I'm making 100%. So you have benefited me far more than I have benefited you. But what I have managed to do is guide. So that's exactly what I'm doing with the course. I'm just guiding. So it's mutual. Likewise, I will also share trading ideas, stocks, etc. एक हाथ से ताली नहीं बजता. ठीक है? So let's get into some basic theory. Some basic theory एक बार कर लेते हैं. Basic theory में आता है first is the philosophy of technical analysis. 66% of philosophy of technical analysis we have already done. The first point is the most important point. It says that the market discounts everything except acts of God. That the market or the index discounts everything. First tenet of Tao theory, except acts of God. Except acts of God. Okay, यहाँ पे मैं just एक बार halt करके I'll share one thing. End of जब मैं आपके साथ वीडियो शेयर करूंगा, I will also email you these class notes and मेरे पास कुछ set PPTs है, PowerPoint presentations. I do not like slide by slide पढ़ाना. Each and every class of AST is very very different. So I go by this scribbling and writing and talking. जब आपको वो slides मिलेगा, you will see that most of the things I have already covered. I don't flow by the slides, I flow by the day, by the batch, by the group. But वो सब cover रहेगा. So this is the first tenet of Tao theory. तो मैंने Tao theory बोल के ये start नहीं किया. मैं ये start करके आपको बोल रहा हूँ कि ये Tao theory का tenet है. इसका मतलब क्या है? Markets discount everything except acts of God. इसको समझने के लिए जैसे मैं last 12 साल से करते आ रहा हूँ, I will ask you a question. One question. उसका आंसर yes या no में आएगा और कुछ नहीं. Either it will be a yes or a no. The moment I ask you the question, both offline and online participants, the moment I ask you the question, आपके ज़हन में जो भी आएगा आप वही बोलिएगा, yes या no. ठीक है? Let me ask you the question, both offline as well as online. The question is, do you believe in God? Yes. 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 तुम्हारा नाम गणपति है. Ganpati says no. Ravi says no. Sonu says no. Okay. And there are many yeses. So, आपका नाम? Vikash. SH? SH. So, Vikash, आपका आंसर है yes. Yes. Why yes? ले. एक internal force है. Internal force है. कैसे पता? Believe है. Believe है God. जैसे हमने PK देखे हैं. हाँ? जैसे PK अपने सब देखे हैं. जैसे पीके में देखा. अच्छा, पीके के पहले आंसर नहीं, पूछता. PK जैसे देखे हैं, वो दिखाया है ना कि हो नहीं हो, अपने को अपना काम करना है. अरे वो है कि नहीं वो मालूम नहीं. भले वो है कि नहीं हमें मालूम नहीं, बट है और बिलीव करना चाहिए. तो अगर मैं बोलूं 6 महीना, यहां से 6 महीना, आपका आंसर नो हो जाए, लेट्स से आप बिलीव करना बंद कर देते हो, क्या आपके चाल चलन, आपके बिहेवियर, आपके काम, आपके तरक्की में बहुत अंतर आने वाला है? नहीं ना. ओके, बाद में आता हूं. गणपति सेड नो.
Why no? I never believed in God, sir. You never believed in God. Why no? कोई अमिताभ वैसा कुछ स्टाइल है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। We never meet him. You've never met him. So essentially you're saying you've never seen him. So you're saying him, huh? Be very careful. You're being very... Women in our batch, ladies in our batch will take it offense. I think there are, right? Within our attendees. Ma'am, is there any ma'am? I think so. Shraddha. Shraddha, sir. Okay. To him. You've not seen him. MC Vivek is saying kindness, positive thinking, divine. Some yeast and grape, wine. Vivek? Little bit of grapes and a bit of yeast, mil jayega wine. You're from Kerala, right, Vivek? If I'm not mistaken, yes. Why yes? Aapka naam? Anupam. Kano? Why yes? Faith है. गणपति, why no? बस कभी देखा नहीं है. So why am I asking this kind of a question in a technical analysis class? मैं इसको और थोड़ा extrapolate कर लेता हूँ. Because most of us the answer is yes, because it's hard coded. बचपन से देखता है, चलते आ रहा है, चल रहा है, चलने दो यार. सर अपने जैसे भी हैं अपने मतलब 80% अपने जो हेरिडिटरी अपने जो मिलता है, हाँ, उसको हम लोग ज्यादा क्वेश्चन नहीं करते. और उसको क्वेश्चन क्यों नहीं करते? बिकॉज वही टाइम में लोग आते हैं, गिफ्ट मिलता है, खाना अच्छा बनता है, छुट्टी होता है, तो ये टाइम अच्छा है यार. स्पेशली इफ यू आर इन बंगाल, पूजा के टाइम में तो 1 महीना पहले से काम बंद, और उस तरफ भी 15 दिन बंद, तो 45 डेज का हॉलीडे, सामने से गिफ्ट मिलता है, पापा पैसा भी देते, गर्लफ्रेंड 6 बजे के बाद भी रह सकती है, बाहर घूमने जा सकते हैं. सो एवरीवन इज इन अ वेरी हैप्पी गो मूड. तो कभी क्वेश्चन नहीं किया. पहली बार मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ, क्यों यस यार? मैंने खुद से कभी क्वेश्चन नहीं. तो the reason why I'm asking you this is most of the times the answer is yes, because it's more or less hard coded. चलता आ रहा है, चलने दो. Most of the times or few of the times the answer can be no, because मैंने कभी देखा नहीं है. So I will come to this point in our 8th class. But how does a human being, we are all humans, decode information is by the 5 senses of eyes, watching, hearing, smelling, tasting, या touching. Neither of these 5 senses tell us that there is a God. So we can say that I have not experienced God. So that why God can be the 6th sense or the 7th sense. 5 sense के ऊपर जो है वही प्रभु है. Okay, ये सब में नहीं जाते. Yes होना is like a blind faith. है नहीं है, कैसा टेस्ट है, कैसा दिखता है, गर्ल है, बॉय है, मुझे ये सब नहीं पता. It can be a force, it can be an energy. I have a blind faith. I have a faith to fall back on. And ये होना ना, if you ask me, is important, जरूरी है, होना चाहिए. If it's no, it's completely fine. If it's no, it's completely fine. In that case, it is you who should have that character, that personality, that faith in yourself. Market में क्या होता है? And in life, whatever is the outcome is your own doing. मेरे साथ जो हो रहा है वो तुम्हारे कारण या तुम्हारे कारण नहीं हो रहा है. It's happening because of my own doing. Same with market also, please. The profits come because of your good stock picking. The losses come because your silly mistakes. Not because मुकेश अंबानी में आके जियो फ्री कर दिया तो आइडिया का और आरकॉम का तो लग गया. आइडिया आरकॉम का पहले से ही लगा हुआ था यार. तो we'll look into those charts and I'll tell you. So why am I asking you this? Because in technical analysis, we will also have a blind faith. And this blind faith tells us that market discounts everything except acts of God. मतलब मार्केट को सब पता है. मतलब क्या? मतलब ये क्या है? उजास है. ठीक है. Let's say recently last week NTPC, NHPC ये सब स्टॉक्स में बहुत जोर का ब्रेकआउट आया था. ये जो मूवमेंट था, मार्केट को ये मूवमेंट पहले से ही पता है ये आने वाला है.
लेट्स से अभी मैंने वो आइडिया आरकॉम का एग्जांपल दिया ना, लेट्स से आरकॉम, जियो जिस दिन आया था, भारती आरकॉम आइडिया बहुत जोर का गिरा था, ये रहा। तो इसके पहले वो ऑलरेडी घट रहा है यार, इट इज ऑलरेडी इन अ डाउन ट्रेंड। मार्केट पहले से ही न्यूज को डिस्काउंट कर लेता है। मैं आपको और एक एग्जांपल देता हूं, दिस इज निफ्टी। वापस चले जाते हैं 2009, ये रहा, this is the peak of 2008, this is October 2008। खुदा का एक कोई ये टाइम ऐसा जो हम लोग ने देखा था अक्टूबर 2008 कोई ना देखे, especially from a broking point of view. From a trading point of view you can make a lot of money, but at that point of time I was a research analyst with a broker, very bad times, very very bad times। but यहाँ देख लेते, those who were there in the market in October 2008, जो मार्केट में थे उनको और डायरेक्टली समझ में आएगा। टाइम्स वेर हॉरिबल, मार्केट फ्रॉम अ हाई ऑफ 6300 डाउन टू अ लो ऑफ 2200, और यहां पे बातचीत ऐसा भी चल रहा था दैट इट विल ब्रेक 2000 एंड गो फर्दर डाउन। नेक्स्ट 3 months, a little more than 3 months, market goes into a range till March, यहां तक रेंज में चला गया। टॉक्स वेर वेरी बिटर, वेरी बैड, रिसेशन 1930s के रिसेशन से, डिप्रेशन से भी खराब, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। देन स्लोली द मार्केट स्टार्ट्स टू गो अप अप अप, no positive news, nothing, it starts to inch up, goes up from around 2500, it goes to 3675, ये रहा। क्यों पता था? Because in May 2009, in June 2009 I think, the era, this one, May 18th May 2009, the UPA government wins the election and the market gaps up 15%. This news was already discounted, market को already पता है। This has happened with Narendra Modi's times also, this will happen in the fall also। let's say we come to the current market, ये सब past में छोड़ देते और निफ्टी के current stage में आ जाते। let's come to the current price of Nifty, 2014, 2015, and here we are 2016। This is the current stage, you see this 9/11 2016 क्या हुआ था? और डबल था। There was demonetization on the 8th night and there was Donald Trump winning the US election. Was the market in an uptrend or downtrend? Market was already in a downtrend. Here comes the news, the market cracks to this point, 8007 तक आता है। क्या इसके बाद मीनिंगफुल करेक्शन हुआ है मार्केट में? हुआ ही नहीं है। मार्केट ने ऑलरेडी डिस्काउंट कर लिया है, मार्केट हैज ऑलरेडी डिस्काउंटेड इट। हाउ डज इट हैपन? लेट्स से इन्फोसिस या कोई भी स्टॉक का न्यूज आने वाला है, you will see that the sector or the stock will start to move either up or down before the news comes। ये जो मैं बोल रहा हूं कि मार्केट डिस्काउंट्स एवरीथिंग, मार्केट पहले से ही सब डिस्काउंट कर लेता है, ये कैसे होता है? अगर इसको विश्वास करना ही है, मैंने तो देखा नहीं है, मैंने देखा है, आई हैव सीन मल्टीपल टाइम्स, तो आई बिलीव। आपने सोचो देखा नहीं है, व्हाई विल यू बिलीव? एंड यू विल आस्क मी ये कैसे होता है, हाउ इज इट पॉसिबल? लेट्स से आपको ले लेता हूं, आपका नाम? सुरेंद्र जी। सोचिए सुरेंद्र जी का शादी एक बहुत बड़ी कंपनी के सीएफओ के साथ, सीएफओ के बेटी के साथ, अ बिग मल्टीनेशनल कंपनी डॉटर सुरेंद्र जी का शादी, एंड दैट मल्टीनेशनल कंपनी इज लिस्टेड and that multinational company will come out with their quarterly result, etc, etc. Now is he privy to some information that me and you don't have, right? So let's say he has privy to that kind of information, either he's the CFO or he's connected to the CFO or he's the promoter or whatever be it, I'm just giving hypothetical example, may not be the CFO, may not be the promoter, but उनके पास ये एक ऐसा information है जो बाजार में नहीं है, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं इनसाइड।
जो बाहर नहीं है न्यूज। अगर सोचो आप एक ऐसा इंसाइडर हो या आपका बहुत अच्छा दोस्त ऐसा एक इंसाइडर है और उनको पता है, आपको पता है दैट हमारा कंपनी का सेल्स अच्छा नहीं हो रहा है, नेक्स्ट 2-3 क्वार्टर में, या बहुत अच्छा हो रहा है, नेक्स्ट 2-3 क्वार्टर्स आवर रिजल्ट्स विल बी डबल एंड ट्रिपल, वेरी गुड रिजल्ट्स विल कम, यू नो दैट फार अहेड, आपको पता है, यू कैन सी इट, व्हाट विल यू डू? You will buy. Now there is a Chinese wall, there are compliance, etc., etc. So what will you do? You will tell your very good friends, very good cousin, सुन ये कंपनी आप तू शेयर खरीद ले और देखना, एंड वी टेक वेरी प्राउड, प्रेडिक्ट करने से वी फील वेरी प्राउड, देख लेना मेरा बात लिख ना, डेट लिख ले. You are very confident of the news because you are the news. So when you are so confident, क्या आप 1 लॉट 2 लॉट 100 स्टॉक 200 स्टॉक खरीदोगे? आप तो बाल्टी भर के खरीदोगे. So you will bring in a lot of volumes and lot of money. So what happens is, let's say if a stock is coming down and you know that the news is going to come later, you start to buy, and your buying pushes the prices up. आप तो 1-2 शेयर नहीं खरीदोगे और आपके साथ जो 4-5 जन हैं, तो बहुत सारा स्टॉक, सो योर ऑन ऑल ऑफ अ सडन स्टॉक में एक बाइंग, स्क्रीन में बाइंग दिखना चालू हो गया. वो क्या करेगा? भाव को ऊपर लेके जाएगा. ये जब भाव को ऊपर लेके जा रहा है, उसमें कोई न्यूज नहीं है. न्यूज कब आएगा? न्यूज तो यहां आएगा. दैट्स व्हाई देयर इज अ सेइंग दैट बाय ऑन रूमर्स, सेल ऑन. In fact, I am such a strong believer of this. I think it was Latachari in CNBC or Bloomberg. I said on live TV that news don't make prices. It's the other way around. It's the prices that makes the news. अब price देखो, you can judge the news. अब price देख के news judge कर पाओगे, news देख के price judge नहीं कर पाओगे. So do not, till now, if you focus too much on news, you track news, you trade on news, put a full stop to it right here. हम लोग जब when I used to work in Bombay in those companies, CNBC या ET Now खुला हुआ रहता था, हम सब उसको म्यूट पे रखते थे. मैं खुद भी टीवी पे जाता हूं, लेकिन मैं भी बोलूंगा आप उसको म्यूट पे रखिए. ठीक है? सुनना सबका, करना खुद का. Alright? So it works because of the insiders. And there are multiple examples. Once we start looking into charts, we will look into Infosys. Infosys gave a horrible guidance here the day it cracked, I think 13-14%, 15th of July. What was the movement of Infosys before that? यार ये मूवमेंट यहां क्यों नहीं आया? चलिए मैं इसको और थोड़ा एक्स्ट्रापोलेट करता हूं. सर एकदम करंट का पकड़िए ना, अभी तो परसों रिजल्ट आया, ऊपर जाके नीचे आया. करंट का पकड़ो तो ये रहा, ये. इसके पहले इसका ट्रेंड क्या है? कुछ नहीं है ना. और न्यूज आने के बाद कुछ हुआ? मार्केट ये जो जहां पे आपका ट्रिगर हो रहा है, न्यूज आ रहा है ना, यहां पे ये लास्ट कैंडल लाल वाला, इसके पहले इसका मूवमेंट क्या था? कुछ था क्या? और आने के बाद कुछ हुआ क्या? अब उधर आ जाओ, ये वाला जो 13% घटा था. 1040 ऊपर मार्केट 960 तक भेज दिया नीचे. हाँ, इंट्राडे में ऑब्वियसली सबको पता है कि इन्फोसिस का जब रिजल्ट आता है भयंकर, उसमें ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी बहुत है, इफ यू गेट इट एट द राइट डायरेक्शन, राइट ट्रेंड. सो मैं इसको क्या एक्स्ट्रापोलेट कर रहा था? जस्ट होल्ड ऑन वन सेकंड. सो आई वाज सेइंग दैट प्राइसेस डिस्काउंट एवरीथिंग, एंड हाँ, ये न्यूज, लेट्स से दैट मार्केट इज इन एन अप ट्रेंड, एंड एक नेगेटिव न्यूज यहां आता है टॉप पे, बहुत खराब न्यूज, इट्स ए ब्रेक्सिट, खराब न्यूज, तो घट जाना चाहिए ना, घट जाना चाहिए, राइट? बट क्या ब्रेक्सिट के दिन में क्या हुआ था पता है? मार्केट वॉज इन अ स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड. इनफैक्ट उस दिन 24 जून 2016 यूट्यूब में मेरा एक वीडियो भी है. अगर मार्केट टॉप में है, अप ट्रेंड में है, और यहां पे अगर एक नेगेटिव न्यूज आता है, इट विल गिव अ नी जर्क रिएक्शन, it will always bounce back. अगर ये नेगेटिव न्यूज को, if this negative news has to have a long run implication, एक नेगेटिव न्यूज आता है जिसके कारण 2-3 क्वार्टर मार्केट खराब रहेगा, वो न्यूज मैंने तो कभी नहीं देखा टॉप पे आते हुए. वो हमेशा क्या करता है? यहां आता है.
जिसको बेचना है वो पहले निकल जाते हैं. सॉरी सॉरी सॉरी. जो जिसको बेचना होता है, कोई भी नेगेटिव न्यूज यहां पे टॉप में नहीं आता है. अगर टॉप में आना है, इफ there's an uptrend and some negative news comes, it will give a knee-jerk reaction and it will bounce back always. If this negative news has to be really bad, which will lead the market to fall further, फिर वो कभी ऊपर में नहीं आएगा. वो कहाँ आएगा? थोड़ा घट जाएगा ना, उसके बाद आता है. Always. Same with positive news also. This is because जिसको बेचना होता है वो पहले चुप चुप निकल जाता है. This reminds me of one of the TV shows I did, and I think Ramesh Damani ji was there. I was very happy. On the other side he was there, and वो बोल रहे थे, it was Z business, हिंदी में था. तो वो बोल रहे थे कि मार्केट लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म, बॉटम या टॉप सोते सोते बनाता है. आपको पता भी नहीं चलेगा. आप छोटे छोटे मूव देखते रह जाओगे, आराम से मार्केट एक लॉन्ग टर्म बॉटम बना भी लेगा. बाद में आप रियलाइज करो, अरे बाप रे, मार्केट तो काफी चल चुका है, तेजी तेजी तेजी. तो वो हमेशा सोते सोते होता है. एंड ही इज सो राइट. ब्रेक्सिट, लेट मी टेक यू टू ब्रेक्सिट. एंड now it's in a hindsight, but more or less, so this is Brexit 24/6. The market before this had a rally, consolidation. So if I come to pre-Brexit day, that's it. I can say it's an uptrend with a little bit of consolidation. Brexit आया और क्या हुआ उसके बाद? Same thing happened in 2007 when P notes को लेके सेबी ने एक नॉर्म निकाला. Market was in an uptrend, खुला 10% नीचे, शाम तक ऊपर. At the top, bad news are discounted. At the bottom, good news are discounted. If it has to be a bad news, it will come. See, Donald Trump, demonetization, यहाँ क्यों आया? यार यहाँ आ सकता था, यहाँ आ सकता था, यहाँ आ सकता था, यहाँ आ सकता था. यहाँ पे क्या न्यूज थे? What was the news in the market that led a fall from 9,000 to 84? ये जो 600 पॉइंट का करेक्शन है ना, 600 निफ्टी पॉइंट्स करेक्शन, where is the news? And after the news? So as you look into charts, you will realize that market discounts everything except acts of God. Except acts of God मतलब earthquake, tsunami, ये सब आपको पता है. और एक चीज, this is NSE Nifty daily chart. Each and every candlestick is one day. थोड़ा गौर से देखिए. एवरीवन जस्ट लुक इन फॉर 2 seconds, 3 seconds. डेली चार्ट, वीकली चार्ट. एवरी कैंडल 1 week. वीकली चार्ट, मंथली चार्ट. ईच एंड एवरी कैंडल 1 month. इंट्राडे चार्ट, ईच एंड एवरी कैंडल 10 minutes, 60 minutes, 1 minute. मैंने आपको 1 minute दिखाया, 10 minute, 60 minute, डेली, वीकली, मंथली दिखाया. What is the common thing between all of these time frames? No matter कोई भी टाइम फ्रेम आप देखो, from as small as 1 minute to as large as monthly, if you look at a 1 minute chart of Nifty, you will see ups and downs. If I open the monthly chart, अरे इसमें भी तो वही है. So existence of trends is there in all time frames. तो आपको इंट्राडे करना है, आप 1 मिनट 5 मिनट के चार्ट खोल के भी कर सकते हो. आपको लॉन्ग टर्म करना है, आप मंथली वीकली चार्ट खोल के भी कर सकते हो. बिकॉज ट्रेंड्स एग्जिस्ट इन ऑल टाइम फ्रेम्स. और पैसा सबसे ज्यादा ट्रेंड से ही बनता है. रिलायंस इंडस्ट्रीज, टॉप आउट किया 2007 में क्लोज टू 1500. ये सब एडजस्टेड है, बोनस सब एडजस्टेड, 1500 रुपए. और इसका 7 साल पहले, ये था 2007, 2000 में अगर जाए, इफ वी गो टू 2000, इट वाज अराउंड 100 रुपीज. 100 to 1500 in 7 years. Good stock? नहीं, good stock, good company, good company.
Reliance trades at 1090, currently at 2016. Let's go back 7 years. 2009. 10,000, 1090. Good stock? Good stock? Bolo, bolo. Bekar stock. Good company? No return. No return. So, we make money, exceptional good money, which we call wealth, in trends. In trends. This is an uptrend, this is a downtrend. Trend में पैसा बनता है. The bulls go up the stairs, the bears take the elevator. Bulls धीरे धीरे सीढ़ी लेके ऊपर जाता है और bears लिफ्ट लेके छत से नीचे आता है. That's an uptrend and a sharp downtrend. These are the zones where you make phenomenal money. This is when you gain phenomenal frustration. ठीक है? So stocks of the companies also change their behavior. जो रिलायंस जो ब्लू आइड स्टॉक हुआ करता था, आप 2007, 6, 5 में रिलायंस फंड्स के होल्डिंग देखोगे, इट विल कम ऑन द टॉप 5 में रिलायंस रहेगा. अब जाके देखो ब्लूमबर्ग खोल के या कहीं भी इंटरनेट में कहीं नहीं आएगा. ठीक है? सो मार्केट्स चेंज, डायनामिक्स चेंजेस, बट ट्रेंड्स, एग्जिस्टेंस ऑफ ट्रेंड्स नेवर चेंज. 100 साल पहले मुझे तुमसे प्यार था, आज भी है और कल भी रहेगा. 100 साल पहले भी ट्रेंड बनता था, आज भी बनता है, कल भी बनेगा, और बीच बीच में हम लोग कंसोलिडेट करेंगे. एग्जैक्टली रिलायंस के साथ वही हो रहा है. अब जब ये यहां से निकलेगा तब ये पीछे मुड़ के कभी नहीं देखेगा. होपफुली जल्दी निकल जाए. You understand what I'm saying? So existence of trends in all time frames is there in technical analysis. Right? So philosophy of technical analysis is 1. Price सब कुछ डिस्काउंट कर देता है. थैंक यू. प्राइस सब कुछ डिस्काउंट कर देता है. Price discounts everything. There are existence of trends in all time frame which help us to make money, and history repeats itself. These pointers make up the philosophy of technical analysis. Any questions as of now? Now all of these things had started, see, trading, speculation had started hundreds of years back. But technical analysis as a subject started with Dow theory in US around 1890s. Now the first theory of technical analysis is that of Dow theory. A little bit of history. His name was Charles H. Dow, I think. Charles Dow. And he was the founder editor of Wall Street Journal. उन्होंने क्या किया? उन्होंने नोटिस किया कि यूएस में एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इंडस्ट्रियल कंपनीज और ट्रांसपोर्टेशन कंपनीज were doing very good. They were doing very good. He took 30 industrial companies and he took 30 transportation companies. इन सबका क्लोजिंग प्राइस लिया, इन सबको ऐड कर दिया और एक एवरेज कैलकुलेट किया. ये हो गया आपका डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज. He took the closing price of all the transportation stocks, he added them up, he took an average, and this is what we know today, Dow Jones Transportational Index average. अब आज भी है, आज भी ट्रेड होता है. This was done hundred years back. What did he do? Every day market बंद होता था, क्लोजिंग प्राइस को लेते थे, एवरेज करता था. What he used to get? He used to get a average price. ये एवरेज बढ़ता था या घटता था, बढ़ता था घटता. वो क्या किया? उनको एक ग्राफ में प्लॉट. अब ये ग्राफ को उन्होंने ऑब्जर्व किया एंड ही केम आउट, ही डिड नॉट कम आउट, ही यूज्ड टू राइट देम बिकॉज खुद का एडिटर थे, फाउंडर एडिटर खुद ही थे, तो खुद ही अपने जर्नल में ये ऑब्जर्वेशन उन्होंने लिखना चालू कर दिया. लेटर इट बिकेम द डाउ थ्योरी. नाउ डाउ थ्योरी का फर्स्ट टेनेट वी हैव डन, मार्केट डिस्काउंट्स एवरीथिंग. डाउ टेनेट का दूसरा टेनेट बोलता है that the market moves in 3 different time frames.
प्राइमरी, सेकेंडरी एंड माइनर. प्राइमरी, सेकेंडरी एंड माइनर मतलब लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म एंड शॉर्ट टर्म. लॉन्ग टर्म क्या होता है यार? हाउ डू यू डिफाइन लॉन्ग टर्म? गवर्नमेंट के टैक्स पॉलिसी, गवर्नमेंट का टैक्स पॉलिसी. परफेक्ट. तो इंडिया में गवर्नमेंट के टैक्स पॉलिसी से लॉन्ग टर्म होता है 1 ईयर. ठीक है. बट गणपति इज एन इंट्राडे ट्रेडर, उसका लॉन्ग टर्म क्या होगा? वीक. वीक. इंट्राडे ट्रेडर आवर्स तो सुबह लेगा शाम को बेचेगा. 9:15 to 3:30, उसका लॉन्ग टर्म क्या होगा? उसका लॉन्ग टर्म होगा, आई विल सजेस्ट 1 घंटा 2 घंटा, उससे ज्यादा नहीं. आवरली एक. बट लेट्स से लुक एट मी, आई एम लाइक अ स्विंग ट्रेडर काइंड ऑफ अ पर्सन. मेरा लॉन्ग टर्म क्या होगा? मेरा लॉन्ग टर्म होगा 1 महीना, 3 हफ्ता, 1 महीना काफी है. जिसका लॉन्ग टर्म 1 घंटा है, उसका शॉर्ट टर्म होगा 5 मिनट, उसका मीडियम टर्म होगा 30 मिनट. अभी ये चीज हम अगर प्रशांत जैन जी से बात करें या फिर कोई भी फंड मैनेजर से बात करें, प्रशांत जैन इज द फंड मैनेजर ऑफ HDFC म्यूचुअल फंड, द सेकंड बिगेस्ट. तो उनका लॉन्ग टर्म क्या होगा? 5 साल, 3, 5, 8. वॉरेन बफे से पूछे तो वो बोलेगा, एंड ही सेज दैट इफ आई लाइक अ कंपनी, मैं कभी बेचू ही नहीं. करेक्ट. कभी नहीं बेचेगा, उसका लॉन्ग टर्म कुछ बेचेगा. अगर उसको कंपनी तभी भी अगर अच्छा लगता है तो ही नहीं बेचेगा. सो लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म, शॉर्ट टर्म तो ठीक है, लेकिन डिफाइंड नहीं है. इट डिपेंड्स ऑन 2 थिंग्स. इट डिपेंड्स ऑन द ट्रेडर हिमसेल्फ. और यहां पे ऐसे भी लोग हैं जो सोचो निफ्टी में लॉन्ग टर्म बुलिश है बट स्टॉक्स में शॉर्ट टर्म बेरिश है, ऐसा भी हो सकता है. सो इट डिपेंड्स ऑन द ट्रेडर, व्हाट काइंड ऑफ अ ट्रेडर यू आर. लॉन्ग टर्म ट्रेडर, तो आपका लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म चेंज होते रहता है. और एक डिपेंड करता है स्टॉक के ऊपर, द नेचर ऑफ द स्टॉक, द क्वालिटी ऑफ द स्टॉक. लेट्स से इन्फोसिस और उसके साथ लेट्स से NIT, ऐसे ही मैंने ले लिया. Now, let's say you have invested 1 lakh rupees, put 1 lakh rupees in Infosys and 1 lakh rupees in NIT. Infosys and NIT. Quickly, Infosys gives you 20% and in that same time period, NIT also gives you 25%. आप किसको पहले बेचोगे? Infosys ने आपने Infosys में पैसा दिया, वो सोचो 3 महीने में it has given you 19-20% returns. Looking nice. Same time you had put money in NIT or Hexaware or Persistent or whatever. Same money. And it has given you little ज़्यादा लेगा ना high beta stocks है ये सब. So it has given you let's say 25%, 30%. And you want to book profit. अब किससे निकलोगे? It's always NIT. So you have that kind of faith, belief. Infosys है, ये तो नीचे आ भी जाता है ना. See, अच्छे स्टॉक्स में लॉस खराब नहीं लगता. JP एसोसिएट्स में लॉस चुभता है. इन यूनिटेक में लॉस बहुत गंदा लगता है. बट इन्फोसिस में उतना खराब नहीं लगता जब तक वो खत्म ना हो जाए. सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, इवन बेस्ड ऑन द स्टॉक आप अपना टाइम फ्रेम चेंज कर लेते. इन्फोसिस तो मेरा पड़ा है ना, मेरा बेटा लेके जाएगा, लेकिन परसिस्टेंट मैं देख के जाऊंगा. सो लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म, शॉर्ट टर्म डिपेंड करता है ट्रेडर के ऊपर, एंड इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द stock. So there is a little bit of battery which I need. Yes, Vikram, thank you. I'll just get the charger. Just hang on 1 minute. वॉशरूम यूज कर लेते हैं. हाँ, उधर है. all right.
ठीक है. Tenet number 2. Tenet number 3. Tenet number 3 of the Dow theory says that the market moves in different phases. That the market moves in different phases. कैसा? Let's say one stock is coming down, and ये आते आते it has come to a very important level. Let's say you are a big fund manager. A stock is in a downtrend. ठीक है? You are a big fund manager. आपका फंडामेंटल टीम आपको बोलता है सर ये स्टॉक 200 रुपए से it has come down close to 100 and 100 में we see a value buy. It's a strong value buy. अपने को we should buy this stock in our portfolio. You're a fund manager, big short fund manager. जो 100, 150, 2000, 10,000 नहीं खरीदता, लाखों में स्टॉक्स खरीदता. क्वेश्चन नंबर 1. If it comes down to 100, सोचो 100 पे आ जाता है, and you have decided to buy 10 lakh shares. Will you buy all 10 lakh shares at 100 on one day? एक साथ खरीद लोगे? No. Why? मिल रहा है 100 में यार, खरीद लो. फर्स्ट ऑफ ऑल बेचेगा कौन? और अगर आप एक साथ मार्केट में 10 लाख शेयर्स इफ यू बाय, you yourself will push the price up. So you will land up buying at a higher price, which you don't want. You can do a bulk deal or a block deal, but the best thing that you can do, which institutions generally do, is चुपचाप धीरे धीरे उसको फील्डिंग करके खरीदते रहो. मतलब 100 आता है, 100 के थोड़ा नीचे आता है, अग्रेसिवली खरीदो. अगर ऊपर जाता है छोड़ दे, मत खरीद. फिर से नीचे आने देना, हाँ ले 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 ले, हाँ खरीदते रहे. You understand? At a lower price, this can lead to a range bound price movement. इसको हम लोग बोलते हैं accumulation. The market is getting accumulated. Accumulation. Accumulation हमेशा always comes after a meaningful downtrend. Now, let's say your reading and everything was fine, and the stock finally breaks out, moves up. यहां पे सब टेक्निकल चार्टिस्ट जंप करेंगे, ब्रेकआउट. यहां पे कोई टेक्निकल नहीं खरीदेगा. जनरली मोस्ट ऑफ देम विल नॉट. यहां पे सब लोग ब्रेकआउट देख के खरीदेंगे. यहां पे इसका फंडामेंटल्स, इसका सेक्टर सुधारना चालू हो जाएगा. टाटा मोटर्स 300 में कोई नहीं खरीदता था, 200 में टाटा स्टील कोई नहीं खरीदता था, 80 में हिंडाल्को कोई नहीं खरीदता. हिंडाल्को अभी 160, 200 में, हाँ ऐसे. टाटा मोटर्स 600 में दो, दे विल बाय. टाटा स्टील 420 में दो, 200 में कोई नहीं खरीदता. यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? जो 200 में टाटा स्टील कौन खरीदता है? सो दिस इज accumulation. The stocks get accumulated. Now the trend picks up. आपने 10 लाख माल उठा लिया है and you have a target of 200. Now let's say the stock goes back to 200. 200 आ जाता है. Will you sell 10 lakhs at one shot and निकल जाओगे 200 में? क्यों? अच्छा, 1 point, बेच नहीं पाएंगे. नंबर 1. नंबर 2 और कुछ? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज प्राइस इंपैक्ट. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज प्राइस इंपैक्ट. 10 लाख एक साथ अगर आप वहां देखते हो कि 200 में मेरा माल आराम से खप जाएगा और ज्यादा इंपैक्ट होगा भी नहीं, आप खुशी खुशी दे दो. लेकिन अगर आप देखते हो कि लेने वाला खड़ा ही नहीं है और मुझे बेचते 200 से जगह बेचते बेचते मेरे 180 आ जाएगा, that your selling will lead to price impact. Your selling will lead to price impact. You will never do that. What generally they do, again the same thing, एक रेंज बना के बेचेंगे और इस बेचने को ऊपर में रेंज बना, we call it distribution. We call it distribution. ऊपर चिपका रहा है, डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है. ठीक है. Now let me ask you a common sense question. नीचे 10 लाख खरीदना, to buy 10 lakhs at the bottom or to sell 10 lakhs at the top, which is relatively easier?
Buying. You're saying accumulation is relatively easier? Selling. Selling? Selling. Selling? Ganpati? Selling. Selling. Why selling? क्योंकि सर जब स्टॉक अगर उतना नीचे आ गया तो जिसको बेचना रहेगा वो बेचना चाहेगा नहीं। मतलब अगर मेरे पास अगर स्टॉक है अगर वो काफी नीचे आ गया और उल्टा? और अगर ऊपर में अगर ज्यादा ओवरवेल में अगर ज्यादा ऊपर चले गए तो वहां पे सर सेलर मतलब मिल सकता है, बिक सकता है। लेकिन अगर मेरे पास कोई अच्छा स्टॉक अगर नीचे आ गया तो फिर मैं बेचूंगा। Almost. अच्छा मैं एक चीज बताता हूँ. You tell me whether you will agree with me or not. I'm going to tell you something. Just tell me, will you agree with me or not? Law of demand economics. It says that if the price of a commodity comes down, quantity demanded goes up. If price of a commodity, अगर मेरा एप्पल फोन का प्राइस घटता है तो एप्पल फोन का डिमांड बढ़ना चाहिए. स्टॉक मार्केट में जब टाटा स्टील 400 का 200 हो गया, 200 में वॉल्यूम ज्यादा थे या कम थे? और जब अभी 200 से 400 हो गया, वॉल्यूम कम है या ज्यादा है? सो मार्केट सेंटीमेंट पे चलता है. व्हेन द मार्केट कम्स डाउन एंड बीटन एंड कंप्लीटली, तब कोई वॉल्यूम नहीं है. ये 10,000 खरीदने में आपका जान लग जाएगा. बेचने वाला मिलना बहुत मुश्किल है. आपको धीरे 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 पेशेंटली खरीदना है, बिकॉज वॉल्यूम्स कम है. एवरेज वॉल्यूम्स ही दिन का कम हो रहा है, लेकिन स्टॉक तो डबल हो गया. अब तो पान वाला भी घुस गया इसके अंदर, तो वॉल्यूम्स बहुत है. चिपकाओ, खुशी खुशी दो, खुशी खुशी लोग लेने के लिए. बिकॉज यहाँ पे everyone says it will fall to 50. Over here all the analysts in the TV will say it will go to 500. तो डिमांड का तो कमी नहीं है. तुम दो ना, कितना सप्लाई दोगे, वो खप जाएगा. So it is far more easy to distribute than to accumulate. Number one. Number two, if you are the guy who is distributing at 200, you are booking profits. आपका Excel sheet profits is turning into your bank account profits. तो you are in a good mood, you are in a hurry. सामने से कोई अगर बल्क डील, ब्लॉक डील या स्क्रीन में दिख जाता है, अरे दे दे उसको. लेकिन यहाँ पे नहीं, रुक जाना, और नीचे मिलेगा, रुक जाना, कोई जल्दी नहीं है. You understand? So it's far more easier to distribute than to accumulate. Simple because of the play of volumes. Simply because of the play of volumes. जब at any point of time if you figure out कि बाजार में सब लोग तेजी बोल रहा है, मुझे भी बहुत अंदर से तेजी लग रहा है, सब कुछ अच्छा है, सब बेच देना. Guaranteed market will do right the opposite. I'll give you n number of examples. In my career, plus in your career also, you will check. Few things I'll ask you to check. You will find they work all the time. They work all. टीवी एनालिस्ट बोलते हैं कि सब जाए और Yes. तभी ऑपरेटर्स लोग भेज देते हैं. Let's not straight away go to operators low. It's more about sentiment. It's more about मतलब sentiment. जिन लोगों के पास So पैसा ज्यादा होता है वो लोग सब correct. I think it's again all these things. I am a little muffat. You know what is muffat? Especially when I'm on TV, I'm a little muffat. So again, it's one of my Bombay days. Again, it was CNBC. No, it was Bloomberg. They asked me, what do you think? What's happening with the market? मतलब ब्रेक चल रहा था, अभी शो चालू होगा. तो अभिजीत, what do you think of the market? ब्रेक में, लाइव में नहीं. तो मैं बोल रहा था कि नहीं पता यार. ओके, समझ में नहीं आ रहा तो नहीं आ रहा है. तो then she told me that when you figure out, you let me know. I said no. I told her, you will figure out far before me. I'll do. You know how? You tell me. You talk to 100 analysts, fundamental, technical, फलाना, जिसको कुछ आता है, जिसको कुछ नहीं आता है. ऐसे 100 जन से आप रोज बात करते हो टीवी पे. जिस दिन 99% of them says मार्केट तो गया नीचे, आप मुझे एक मैसेज डाल देना, मैं खरीद लूंगा. And vice versa. It's true. It's sentiment indicator. Always true. Distribution, accumulation. Now let's say यहाँ से who stays the farthest amongst offline students, who stays सबसे दूर कौन रहता है? शाहिद, block deal is like at one shot I can buy, let's say 1,50,000, 10 lakh, whatever number of shares. Through a block deal means at one shot I am buying and someone is selling. How is it possible? It happens on the screen. It happens on the screen, but the negotiation happens off the screen. So my client says उसको 10 लाख शेयर चाहिए. I check
किसके पास ये शेयर्स है, क्या वो बेचेगा? आई एज अ ब्रोकर अप्रोच हिम दैट सर आई हैव अ क्लाइंट जो खरीदना चाहता है, क्या आप बेचना चाहते हो इस भाव पे? इफ दे बोथ अग्री, then at the same point of time both of them put the same quantity order at the same price and trade होता है on the market या off the market भी होता है. सबसे दूर कौन रहता है? आप कहाँ रहते हो? उड़ीसा. नहीं नहीं, अभी यहां से निकल के उड़ीसा थोड़ी ना जाओगे. यही कैलकाटा के अंदर हु स्टेज द फारदेस्ट? सातरागाची फारदेस्ट. आपका जिम वहां पे है सातरागाची में? आंदुल. अच्छा ओके. संतरागाची से आंदुल आते हो रोज. वो भी दूर है सर. आंदुल और संतरागाची भी दूर है. नहीं बाइक पे. चलिए, सो ही हैज कम फ्रॉम सातरागाची विच इज फार. आप तो फिर जिम फिम करते हो, ठीक है. क्या आप सातरागाची यहां से निकल के भाग के जा सकते हो? रनिंग हाउ मेनी किलोमीटर्स? यहाँ से 20 किलोमीटर भाग के जा पाओगे? चलो अगर जाना पड़ा तो जा पाओगे ना. अगर पैदल वॉकिंग, अगर सोचो कुछ नहीं है आपको जाना ही पड़ेगा और कोई नो अदर वेज, चले जाएंगे ना. बट इफ यू गो फ्रॉम प्रिटोरिया स्ट्रीट टू सातरागाची 20 किलोमीटर्स वॉकिंग, क्या आप यहां से निकलोगे और सीधा घर पे वेट स्टॉप करोगे या बीच में कहीं पे रुकोगे? रुकोगे. कलकत्ता है तो रोल फोल खाओगे, मुंबई है तो वड़ा पाव, चेन्नई है तो कुछ और इडली डोसा, कुछ ना कुछ तो खाओगे. दिल्ली है तो थोड़ा कबाब टंगड़ी तोड़ दोगे, एक पैक. गुजरात है तो फाफड़ा जलेबी उंदिया खाकड़ा, नहीं उंदिया तो डिश हो गया, ठीक है. सो स्टॉक भी अगर 100 से 200 भागेगा ना, वो स्ट्रेट वे नहीं भागता है. इट विल गेट एग्जॉस्टेड. बीचों बीच इट टेक्स अ ब्रीदर, वो थोड़ा सांस ले लेगा. एंड दैट इज कॉल्ड consolidation. That is called a consolidation. Now you will ask me $1 million question. You tell me that okay, I see a chart which is going up और ये एक रेंज में है और ये इस रेंज से निकला और फिर से एक रेंज में गया और यहां से भाई साहब नीचे आ गया. So according to the definitions, this is a distribution and this is a consolidation. But भाई मेरे यहां आते, ये सब बाद में, यहां आते. How do I know this is a consolidation and not a distribution? ये तो डिस्ट्रीब्यूशन भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता था. कैसा पता चलेगा? There is a crude way and there is a slight minor intelligence we can implement. Crude way is जो थ्योरी बोलता है एकदम ब्लैक एंड व्हाइट. तुम्हें दिखता है कि स्टॉक एक रेंज में गया है ना, तुम्हें दिखता है स्टॉक एक रेंज में गया, उसका प्रीवियस ट्रेंड क्या है? अप. स्टॉक हैज मोर चांस ऑफ दिस देन दिस. नंबर 1. नंबर 2, ऑलवेज वेट फॉर द ब्रेक. जब तक ब्रेक नहीं होता चुपचाप धड़े रहो. रिलायंस 1000, 1100 और 1150 ब्रेक નથી, टूटता नहीं है. जब तक नहीं ब्रेक करता है मत चढ़ो. दैट इज द रूल. आइदर अप और डाउन. जब तक ये ब्रेक नहीं करता है कुछ मत करो. द लिटिल इंटेलिजेंस दैट यू कैन पुट इज दिस. द लिटिल इंटेलिजेंस दैट यू कैन पुट इज, सोचिए कि अगर ये डिस्ट्रीब्यूशन होता तो यहां पे some big hands, some institution will exit. And if institutions and big hands are exiting, will the volumes be less or more? More. So in a distribution, if you all of a sudden see spikes in volume, so जो market trend uptrend है, चढ़ा हुआ है, ऊपर एकदम टंगा हुआ है, कंसोलिडेशन हो रहा है, एंड अचानक से आपको वॉल्यूम दिख रहा है. स्पेशली जब स्ट्रॉन्ग मूव है ना, स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड, उसके साथ अगर वॉल्यूम है, यहां डिस्ट्रीब्यूशन होने का चांस है. मतलब लोग इसको यूज कर रहे बेचने के लिए. ऑन द अदर हैंड अगर ये वॉल्यूम्स कुछ नहीं है, एकदम ड्राई, कुछ नहीं, हाई चांस
कंसोलिडेशन। लोग पार्टिसिपेट तब करेंगे जब ये यहां से, इनको लगता है यहां से और ऊपर नहीं जाएगा, बेच दो। द रीजन दे आर नॉट पार्टिसिपेटिंग बिकॉज दे थिंक इट विल गो फॉर, डज नॉट वर्क ऑल द टाइम, बट ये आपको एक अंदाजा दे सकता है। ट्राई एंड अंडरस्टैंड इट, आपको एक अंदाजा दे, अगर नीचे में कोई माल लिया है और ऊपर में बेच रहा है तो वो वॉल्यूम्स में डेफिनेटली दिखेगा। सो accumulation, consolidation, distribution. Tenet 4 Dow theory says that volumes should confirm price. Volumes should confirm price or confirm the trend. इसका मतलब क्या? Let's say we take up an uptrend. Leg 1 थोड़ा नीचे, leg 2 थोड़ा नीचे, leg 3. Right? This is an uptrend. According to Dow theory, when a stock makes a series of higher highs, ये जो high है ये अपने previous high से ऊपर है, so this is higher top or higher high. This low is higher than previous low, so this is a higher low or higher bottom. When you have a series of higher high and higher low, you are in an uptrend. When you are in a series of lower high and lower low, you are in a downtrend. कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। ये रहा रिलायंस डेली चार्ट, अप ट्रेंड है या डाउन ट्रेंड है? अप ट्रेंड है। चलिए लेट्स ओपन द निफ्टी 50 स्टॉक्स। ACC, you will call this an uptrend or a downtrend? Sideways. चलिए लेट्स सी, दिस इज द करंट प्राइस, दिस वाज द प्रीवियस हाई, उसके पहले हाई वाज दिस, सो इट्स अ हायर हाई। ओके, इसके पहले द लो वाज दिस एंड उसके पहले द लो वाज दिस, स्लाइटली हायर इफ नॉट सेम, सो हायर लो हायर हाई, इट्स इन अ अप ट्रेंड। तो पहले जो आंसर था वो देख के लग रहा था, इट वॉज सब्जेक्टिव, देख के लग रहा है रेंज बाउंड है, रेंज बाउंड करेक्ट है, रेंज बाउंड देख के भी लग रहा है फ्लैट है, लेकिन अगर आप ऑब्जेक्टिव वाइज जाओ तो आप चेक करोगे हायर हाइज हायर लोज, मतलब अप ट्रेंड, मतलब यहां से इसका ऊपर जाने का चांस नीचे जाने से ज्यादा है। जाएगा इसका कोई गारंटी नहीं है, ये जस्ट बायस बता रहे हैं, बायस क्रिएट कर रहे हैं। सेम थिंग, लेट्स गो फॉर लेट्स से बजाज ऑटो, हाइज आर लोअर, हाइज तो लोअर है, लोज आर लोअर। देखिए यहां तक आ गया है, यहां से अगर घुमा या और नीचे आके घुमा, प्रीवियस लो से तो नीचे आ गया ना, तो लोज तो लोअर हो गए, हाइज भी लोअर, सो डाउन। बॉश अप ट्रेंड, डॉक्टर रेड्डी गेल अप ट्रेंड, HCL टेक clear? So Dow theory quickly what it did, it helped us to define an uptrend and a downtrend. और जहां पे ये सीक्वेंस नहीं है, हायर हाई है हायर लो नहीं है, फ्लैट ट्रेंड। नाउ प्राइस वॉल्यूम टू कंफर्म प्राइस means, let's say you are in an uptrend where this is an uptrend where this is in line with the uptrend, this leg is in line with the uptrend and this leg is in line with the uptrend. पूरा जो डायरेक्शन है उसके साथ है, A, B and C 1 2 3। इसका अगेंस्ट, इसके अगेंस्ट पे ये लेग है और ये लेग है, ठीक है। सो थ्योरी बोलता है, द थ्योरी सेज दैट वॉल्यूम शुड कंफर्म प्राइस, प्राइस का डायरेक्शन इज अप, सो ये जो अप जा रहा है यहां पे जो वॉल्यूम्स होंगे
ये वॉल्यूम्स जब ये मार्केट घट रहा है उससे ज्यादा होगा ये, और जब घट रहा है तब कम हो जाएगा। जब फिर से पिकअप किया इन लाइन विद द मेन ट्रेंड, तब ये वॉल्यूम फिर से बढ़ जाना चाहिए, और जो प्रीवियस जो वॉल्यूम्स था ना उससे या उससे ज्यादा होना चाहिए। फिर से घटा, प्राइस घट गया तो वॉल्यूम्स भी कम हो जाए। अब फिर से इट पिक्ड अप, वॉल्यूम्स शुड पिकअप, वॉल्यूम्स पिकअप होना चाहिए। अगर ये पिकअप नहीं होता है और ये सोचो नीचे ही रहता है, जिसका मतलब वॉल्यूम्स प्राइस मूवमेंट को कंफर्म नहीं कर रहा है, ये अप ट्रेंड ज्यादा देर नहीं टिकेगा। डज इट वर्क प्रैक्टिकली? नॉट ऑलवेज, नॉट ऑलवेज, बट इट गिव्स अ गुड साइन। हम लोग इसको और इंटेलिजेंटली कैसे यूज करेंगे मैं आपको दिखाता हूं। रॉ वॉल्यूम्स को यूज नहीं करेंगे, एवरेज ऑफ वॉल्यूम्स प्लॉट करेंगे या वॉल्यूम इंडिकेटर प्लॉट करेंगे, बाद में आएगा। बट दिस इज द थ्योरी। पहले रूल वही अच्छी तरह से तोड़ सकता है जो रूल्स को जानता है, समझता है। करेक्ट? सो विल नो द थ्योरी एंड देन वी विल use it in our own ways. One more important thing you should keep in mind, keep track when you're trading is let's say Nifty has made a series of higher highs, higher lows, और ये हम यहां पे निफ्टी का बात कर रहे हैं। Nifty has the most reputed 51 stocks, 50 नहीं, 51 stocks, and it signifies the quality of the market. Parallelly सोचिए इसके साथ ही मिड कैप इंडेक्स मूव कर रहा है। Now is mid cap small cap the quality of the market? जो मिड कैप स्मॉल कैप स्टॉक्स है, डू दे इन्फर द क्वालिटी ऑफ द मार्केट और स्पेक्यूलेशन ऑफ द मार्केट? मिड कैप स्मॉल कैप में क्या ज्यादा होता है? स्पेक्यूलेशन होता है। सो नाउ ये पॉइंट को लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड। एट दिस स्टेज निफ्टी जो कर रहा है, क्वालिटी स्टॉक्स जो कर रहे हैं, स्पेक्यूलेटिव स्टॉक्स भी हुबहू वही कर रहे हैं, दोनों ही रैली में है, रैली मूड में। So this uptrend is across all the sectors, the Nifty as well the broad base. So this market will rally. If the mid and small caps continue to rally, but Nifty starts to come down, you see in this case, this guy has made a higher high, this guy has made a, मतलब यहाँ क्या हो रहा है? two averages are not confirming each other. लार्ज कैप टूटना चालू हो गया है, वो मिड कैप का पार्टी चल रहा है। ये बहुत बार होता है, ये अपने को बहुत बार देखने को मिलता है। दैट मिड कैप स्मॉल कैप पार्टी बिगिंस लेट बट चलते रहता है, और धीरे 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 लार्ज कैप में सेलिंग आता है। इफ दिस हैपेंस देन दिस इज एन अर्ली साइन ऑफ अ रिवर्सल। इसका उल्टा सोचते हैं, इसका उल्टा कैसे हो सकता है? सोचिए निफ्टी घट रहा है और उसके साथ स्मॉल एंड मिड कैप भी घट रहे हैं। अब सोचिए दैट आपको इन्फोसिस 25% नीचे मिल रहा है और हेक्सावेयर 25% नीचे मिल रहा है, आप किसको पहले खरीदोगे? सो इफ द मार्केट हैज करेक्टेड मीनिंगफुल, the money, the first round of money goes into the large caps, the blue chips, the quality. So when you're in a downtrend, the quality space starts to move up first. इसमें पिटाई ठुकाई चलते रहता है, उसके बाद ये घूमता है। So this tenet of Dow theory says that averages should confirm each other. जब आप एक मार्केट को देख रहे हो, हम लोग जनरली वो क्लोजली देखते हैं, आई ऑल्सो क्लोजली वॉच, कि अगर ये हफ्ता रियलिटी बहुत चला तो कौन कौन से सेक्टर्स इसके साथ चले, कौन कौन के सेक्टर्स इसके साथ नहीं चले। इट गिव्स यू अ गुड इंफॉर्मेशन, नॉट फ्रॉम अ शॉर्ट टर्म बट फ्रॉम अ मीडियम टर्म पॉइंट ऑफ व्यू। गुड आइडिया। एंड द लास्ट tenet of Dow theory, which is the sixth
which is the sixth tenet of Dow theory, says that once you are in a trend, जब एक बार आपका ट्रेंड डिफाइन हो जाता है, there is a high probability of the trend to continue rather than to reverse. Like the second law, Newton's law of motion, that once you have picked up momentum, एक डायरेक्शन जब मार्केट पकड़ लेता है, हाई चांस रहता है उस डायरेक्शन को कंटिन्यू करना, ना कि उसको रिवर्स करना. Now, let me draw an example कि अगर आप डाउ थ्योरी देख के ट्रेड करोगे तो क्या हो सकता है, मैं आपको बताता हूं. Market comes down to a low, market goes up, it's not making a higher high yet, now it makes a higher high. You are waiting, it comes down, it can come down all the way here, so you will wait कब ये higher low बनाएगा, higher low अब बनाया. So let's say you have a higher high, you have a higher low, and you buy somewhere here. Now you will expect it to go further up, and you will not do anything जब तक कि ये उल्टा नहीं करता, चुपचाप बैठे. अब ये नीचे आना चालू हुआ, आप कुछ नहीं करोगे, अब ये ऊपर आना चालू हुआ, आप एक्सपेक्ट कर रहे हो that it will go up. It does not go up, it stays here and starts to come down. Now it has made a lower high, but has it made a lower low? तो आप कुछ नहीं करोगे. When will you sell? You will only sell when it falls below this. So what is your entry and what is your exit? This zone was your entry, this zone was your exit. How much did you make? More or less this much. How much did the market rally? This much. How much did you make? More or less 40-50% of the rally. So the biggest criticism of Dow theory is the signals are late. Late आता है. जब तक buy आता है, by the time you get a buy signal, already a movement has taken place. By the time you get a sell signal, already a movement has taken place. So late यार, signals are very late. मुझे बोलना, मैं यहाँ पे खरीदने के लिए बोला. As a trader, you would like to buy here. As a trader, you would like to sell here. That's the sign of a smart trader. होता है नहीं होता है, but वही कोशिश है ना. If I follow Dow theory, signals are too late. Number one. Number two criticisms is it cannot help me to predict. Means when I bought here, how far will it go? It cannot tell me. When I sold here, ये कितना और नीचे जा सकता है? It cannot tell me. So Dow theory has these two downsides. The signals are late and it cannot predict. Now let's look into some practical charts now. Philosophy of technical analysis, price discounts everything. There is trends in all time frame. Money can be made with the trends. I have 1 minute, 10 minute, 15 minute, monthly, hourly, जो भी है. Based on my trading style, risk appetite, I can use my time frame. ये सब ठीक है. Then we did Dow theory. But ये जो two-dimensional plane है, इसमें there are various ways in which you can plot this chart. The first elementary is the line chart. Line chart looks like this. Now prices has 4 points, open, high, low, close. Line chart only plots the closing price. ये एकदम elementary है, but ये बहुत ज़्यादा important है. I use it a lot. And later on when we do indicators, मैं आपको दिखाऊंगा लाइन चार्ट क्यों इतना सुपीरियर है. हम लोग कोई आजकल लाइन चार्ट नहीं देखते, सब मोमबत्ती देखते. I'll show you how and why line charts are so powerful. Line chart only plots the closing, open, high and low नहीं दिखाता है. Next आता है बार चार्ट. ये वो वाला बार नहीं है जो वीकेंड में हम लोग जाने के लिए वेट करते हैं दोस्तों के साथ. क्यों गणपति, ठीक बोला? This is a simple bar chart. You'll see in bar chart, it's like a stick.
which has a left tick and a right tick. The highest point of the stick is the high, the lowest point of the stick is the low, the left tick is the open and the right tick is the close. Bars are color coded green या red depending on कल का प्राइसिंग क्लोज. मतलब अगर कल के क्लोज से आज क्लोज ऊपर है, इट्स अ पॉजिटिव बार. अगर कल के क्लोज, इफ टुडेज क्लोज इज हायर देन यस्टरडेज क्लोज, द बार ग्राफ इज पॉजिटिव. इफ टुडेज क्लोज इज बिलो यस्टरडेज क्लोज, द बार इज नेगेटिव. The next and the most widely used is the candlesticks. Before I go into candlesticks, tell me something. This is the chart of Asian Paints. Donald Trump demonetization आया यहाँ. Demonetization के लिए हम समझ सकते हैं Asian Paints, और वो नीचे आ गया यहाँ. मुझे एक चीज बताइए और बहुत ध्यान से बताइएगा. ये जो सेल ऑफ है ना, जो अक्टूबर में चालू हुआ था 1200 रुपए से 1000 रुपए में, कुछ न्यूज था क्या? नहीं था. नेक्स्ट, मैं एशियन पेंट्स का थोड़ा हिस्ट्री देखता हूं. यहां से और भी पीछे और भी रैली है, यहां से यहां तक देखिए, एंड योर न्यूज केम हियर, करेक्ट? व्हाट आई एम आस्किंग यू इज, ऐसा सेल ऑफ इसके पहले एशियन पेंट्स में कभी हुआ था क्या? नहीं हुआ था. मुझे फिर एक चीज बताइए, एज अ टेक्निकल ट्रेडर, एज अ चार्टिस्ट, व्हेन आई लुक इनटू एशियन पेंट्स एट दिस लेवल्स, मुझे समझ में नहीं आ रहा है ये क्यों इतना जोर से गिर रहा है. तो ऐसा क्या हुआ है इसको? हिस्टोरिकली लास्ट फ्यू इयर्स इट हैज नॉट क्रैक्ड लाइक दिस. एवरीथिंग इज हंकी डोरी, ब्यूटिफुली गोइंग अप. एवरीवन इज टॉकिंग वेरी गुड अबाउट पेंट्स एंड एवरीथिंग एंड कंजम्पशन एंड एवरीथिंग. तो क्यों इतना जोर से? थोड़ा अगर सेल ऑफ होता है धीरे, फंडामेंटली इज वेरी गुड कंपनी, देन व्हाट इज द रीजन दैट इट इज क्रैशिंग सो फास्ट? मतलब ऐसा जोर का घट रहा है जैसे कि सब खत्म हो गया. इट इज क्रैशिंग फ्रॉम 1220 टू 1060, 1050. क्यों भाई? क्योंकि क्योंकि इनसाइडर न्यूज, क्योंकि ये आने वाला है. अब ये आ गया, इसके बाद बोलो कुछ हुआ है. सो नाउ he comes up with the news on this day. It makes a low of 955, and look at where we are, 933. 950 से 850 गया, 850 से 930 आ गया. कहीं का नहीं गया ना न्यूज के बाद. और न्यूज के पहले, this is when we say price discounts everything. प्राइस को पहले से ही पता है कि बॉस क्या होने वाला. Clear? So generally we tend to say it is already discounted. तो न्यूज है ना बॉस, मार्केट is like a collective consciousness. It's far superior than individual levels. ठीक है? So candlesticks. Now what I'm going to ask you is, Asian Paints daily chart, bar chart, candlestick chart. This is the bar chart. This is the candlestick chart. Visually कौन सा ज्यादा appealing है? Which one is visually more appealing? Candlestick chart. Now this is a very shallow thing to say, but visually appealing is definitely candlesticks because it creates a body. But we do not use candlesticks because it is visually appealing. लड़की सुंदर है, वो सिर्फ देख के शादी नहीं करना चाहिए. ठीक है? और भी कुछ गुण होना चाहिए, सुशील भी होना चाहिए. ठीक है ना? शादी नहीं करना है तो और भी कुछ, और भी. डोंट जज द बुक बाय इट्स कवर. चलो, तुम्हारा हो चुका है, इसीलिए तुम यू कैन नॉट रिवाइंड इट, यू कैन नॉट गो बैक. दैट्स व्हाई. डोंट जज द बुक बाय द कवर, डोंट बाय द विस्की बाय द बॉटल. ठीक है? लॉट ऑफ थिंग्स. सो द पॉइंट इज विजुअली प्लीजिंग है, इसके लिए हम कैंडलस्टिक यूज करते, ऐसा नहीं है. कैंडलस्टिक्स इन इटसेल्फ is very, very powerful. We will spend one full class on candlesticks and Heikin-Ashi candlesticks. But as of now, yeah, visually बहुत pleasing है. It creates a body. The bodies are either positive or negative. If it is positive, when the close of that day is higher than the opening of that day, candlestick
has got nothing to do with yesterday. बार्स पॉजिटिव तभी होगा जब आज का क्लोज कल के क्लोज से ऊपर या कल के क्लोज से नीचे. कैंडल्स रात गई बात गई, कल क्या हुआ मुझे मत पूछो, आज कहां खुले, वेयर डिड यू ओपन टुडे, वेयर डिड यू क्लोज टुडे, डिड यू क्लोज हायर पॉजिटिव, डिड यू क्लोज लोअर. That is candlestick. It creates a body and it creates these shadows. It's called upper shadow, lower shadow, etc. We will spend one full class. नीचे में we generally get the volumes, which is in the shape of histograms, which look like this. So, technical analysis, day 1, basics, a picture showing what? Fact. This is fact. एशियन पेंट्स 933.25 में फ्राइडे क्लोज हुआ है, उसका हाई लो क्लोज ये है, नो वन कैन डिबेट दिस. उसका वॉल्यूम 7,70,000. दिस इज फैक्ट, स्टैम्प्ड, शोन ऑन अ पिक्चर विथ टाइम एंड प्राइस. द टू मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स दैट वी हैव इज प्राइस एंड सेकंड वॉल्यूम्स. इसको देख के एट 933.25 a technical analyst can make a काइंड ऑफ जजमेंट कि इसका ऊपर जाने का चांस कितना है, नीचे जाने का चांस कितना है. मैं आपको एक टुवर्ड्स वी हैव कम टुवर्ड्स द क्लोज, मैं आपको एक इज accumulation happening in Asian Paints. I'll answer Vivek's question and I'll tell you. Is accumulation happening in Asian Paints? So ये डेली चार्ट से मैं क्विकली वीकली चार्ट में चला जाता हूं एंड वीकली चार्ट में जाके देखता हूं दैट ये जोन में मतलब जस्ट 900 के नीचे जब भी जाता है ये ऊपर आ जाता है और 900 के लेवल में ठीक ठाक वॉल्यूम्स भी ठीक ठाक हो रहे हैं, नॉट एक्सेप्शनल, और ये एक रेंज बना रहा है. सो विवेक इज आस्किंग इज दिस एन एक्यूमुलेशन? मे बी, पूरा क्लैरिटी नहीं है. Accumulation generally what happens within a range, tight range. This is not a very tight range. ये एक trading range बना चुका है. Vivek, the answer was maybe. We should keep a close watch. Maybe. देखिए यहां पे जोर का तोड़ रहा था और देखिए वॉल्यूम्स 966 तक गया था, 869 तक गया था लो. उसके पहले 960 ऐसे 958, 960 कर लो. तुम ट्रेड किए थे उस दिन. नहीं, मैं फॉलो करता हूं. फॉलो कर. ठीक है. नाउ टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस क्लास टुडे लेट मी आस्क यू अ क्वेश्चन. Let me ask you a question. The question is, question का आंसर आएगा जब मैं आपको एक केस देता हूं. The case is today day 1 I will give you a very good trading strategy. Okay, very good नहीं, a very simple trading strategy. I will give you a very simple trading strategy today. सुनिए, हंसिएगा मत, ठीक है. You take a coin. You take a coin. A coin has two sides. It has a head and it has a tail. कोई भी coin. System ऐसा बोलता है that every Monday morning before 9:15 you take a shower, fresh clothes. You have to wear fresh clothes. पुराने जीन्स फिन्स नहीं चलेगा. आप नहा धो के फ्रेश होके फ्रेश क्लोथ्स पहन के इस कॉइन को लोगे और इस कॉइन को ऊपर में टॉस करोगे. अगर हेड आया then you will buy Nifty. 1 lot, 10 lots, 100 lots. That is up to you. 9:15 को मार्केट खुला, आपका हेड आया था 9:15 के पहले, you will buy Nifty and आप भूल जाओगे. You go and do whatever you want to. Don't look into the market. You come back on Friday at 3:15 and आपने लॉन्ग किया था ना, आप उसको बेच दोगे, क्लोज हो गया. वीकेंड आराम करो. पूरा वीकडे तो आराम ही किया है, वीकेंड भी आराम करो. मंडे आएगा, नहाना पड़ेगा, फ्रेश क्लोथ्स पहनने पड़ेंगे. वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. फ्रेश क्लोथ्स पहनने पड़ेंगे.
उसी कॉइन को लेना पड़ेगा, कोई दूसरा कॉइन नहीं चलेगा। उसको टॉस करोगे, अगर टेल आया, इफ यू गेट अ टेल, यू विल शॉर्ट निफ्टी Monday to Friday 315 Majama, come back. If you have shorted, you will cover. ये है strategy. If you do this continuously for 2 years, 104 हफ्ते, 52, around 104 weeks, if you do this, I am asking those people who are in the market for more than 2-3 years, if you do this 104 times, what do you think? पैसा बन सकता है या नहीं? क्या लगता है? पहले आप मेरा क्वेश्चन का आंसर, क्वेश्चन से क्वेश्चन नहीं पूछो, आपको क्या लगता है? यू गॉट द क्लियर? वेरी सिंपल है ना, स्टूपिड है, बट फिर भी मैं पूछ रहा हूं। 50-50 चांस है। तुम्हें क्या लगता है? 50। आपको क्या लगता है? आपको क्या लगता है? तो पैसा तुमको 2 मिनट दीजिए। 2 मिनट दीजिए, चलिए ले लीजिए, पूरा मिनट ही आपके पास। 50-50 आता हूं, सुन लो सबका। हाँ, आप बोले तो बन ही सकता है। मैं कहा, मैं तो पूछ रहा हूं। मे बी सीरियसली गैम्बलिंग अच्छा, विल मेक लॉस ओनली अच्छा, ऑप्टिकल एक्सप्रेस नो आइडिया, ओके, इट विल बी लाइक गैम्बलिंग, यस इट कैन बी गैम्बलिंग, इट इज मे बी गैम्बलिंग। आई एम आस्किंग, गैम्बलिंग करके भी तो पैसा बनता है। व्हाट आई एम आस्किंग इज, अमिताभ वाला कॉइन चाहिए। What I am asking is there a possibility of making money? Yes. 50-50 हो सकता है। ऐसा भी तो हो सकता है कि वो हफ्ता मार्केट फट गया ऊपर, आपको 400 पॉइंट मिल गया, हो सकता है, या फिर 400 पॉइंट लग गया, वो भी हो सकता है। जिस दिन नीचे गया उस दिन आपको शॉर्ट मिला था, वो भी हो सकता है। सो इट्स अ गेम ऑफ लक ओवर हियर, which few people are saying gambling is fine. So the probability of going right and probability of going wrong is how much here? This can sound silly, but it's very very serious. आप बोल रहे थे मुझे 2 मिनट टाइम दीजिए, और आपने 10 साल का तो एक्सपीरियंस होगा ही कम से कम, इफ नॉट 20। कितने साल का एक्सपीरियंस है आपका ट्रेडिंग कर रहे हो? 10 इयर्स का एक्सपीरियंस है। इतना बेहुदा सिस्टम जिसमें कोई बेसिस नहीं है, कोई महत्व नहीं है, कोई फंडामेंटल टेक्निकल, सब भाड़ में गया। मैं सिर्फ नहा के, कपड़े पहन के, अच्छे कपड़े, साफ कपड़े पहन के, एक कॉइन के बेसिस पे ट्रेड कर रहा हूं, और वो करके भी मुझे लगता है यार हो भी सकता है, यार बन भी सकता है। Now I'll tell you what we were doing. We were entering the market on a random basis, completely random, 50-50 चांस के साथ, with a chance of 50% going right, 50% going wrong, completely random. अब आप ये AST, BST, CST 10 years, 20 years, 50 years, 17 बुक्स पढ़ के आप क्या उखाड़ना चाहते हो? आप उखाड़ना ये चाहते हो दैट -50 को आप कभी नहीं हटा सकते, -50 को आप कभी नहीं, -50 को आप कभी नहीं हटा सकते। आप चाहते हो that the chance will always be 50-50, that I will be able to increase my probability of going right from 50 to 60 to 70 to 80 to 90, but मैं 100 कभी नहीं पहुंच सकता। आप कभी भी 20 साल के एक्सपीरियंस के बाद भी आप रेयरली बोल सकते हो I'm 100% कॉन्फिडेंट मार्केट यहां से 200 पॉइंट ऊपर जाएगा। जब अपने को मार्केट पूरी तरह से समझ में नहीं आता है, 50-50 नहीं, मेरा बायस थोड़ा है, 60% चांस है मार्केट ऊपर जाएगा। सो व्हाट आर वी डूइंग विथ टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस, क्वांटिटेटिव एनालिसिस, एस्ट्रोलॉजिकल एनालिसिस। लोग ऐसे भी है, चांद तारा वीनस देख के बोलते हैं, करेक्ट? ये जो सब एनालिसिस है, दिस ऑल हेल्प्स अस क्रिएट अ बेसिस। On the basis of this, we create a bias. That bias is whether the market is going to go up. It's a game of बस। और अगर आप 10 साल करके, 20 साल करके देखते हो यार ये तो नहीं हो रहा, इससे अच्छा कॉइन टॉस कर लो, बहुत काम में आ जाएगा, बिकॉज वो बाकी का टाइम आपका फ्रूटफुल चीज होगा। So it's a game of probability. So we will end the session like this.
Asian Paints 933.25 in a short-term uptrend after a long-term downtrend. We will analyze this chart with technical tools. Step by step, we will put some tools. We have already done some tools. Kya? I turn it into a line chart. Basic Dow theory tells me it's in an uptrend. So अगर मैं Dow theory follow करूं तो इसका ऊपर जाने का चांस नीचे जाने से ज्यादा है. Done. So I will have a bias on the upside. इसके ऊपर जाता है तो I can buy. जब तक lower high lower low नहीं बनाता है I will not sell. So you have created a basis. वो basis क्या है? Dow theory. आपका bias क्या है? up. आपका trade क्या है? long. अब कब बेचोगे? ये हुआ एक सौदा. Properly done. See, the most important thing is to get the सौदा done properly, not profit or loss. You know who's Virat Kohli? ठीक है? या फिर सचिन तेंदुलकर, या फिर the Usain Bolt or the best of the people in the industry. आपको क्या लगता है विराट या सचिन तेंदुलकर जब उतरते उनके दिमाग में क्या चलता है कि आज तो मैच जीत के ही जाएंगे? If you think like this, they will never win the matches. I'm quite confident that Sachin thinks that ये जो बॉल आने वाला है, ये जो एक बॉल मेरे पास आने वाला है, ये कहाँ ड्रॉप होगा, उसका लेंथ एंड लाइन क्या होगा, उसके हिसाब से मैं उसको ट्रीट करूंगा. तो अगर अच्छा बॉल है तो अच्छा डिफेंस, और अगर लूज बॉल है, लेकिन इफ आई थिंक कि नो मैटर कहीं भी दे मैं तो मैच जीत के ही जाऊंगा, यू विल नॉट मेक इट. यू विल बी लाइक यूसुफ पठान. तो माय फ्रेंड, what I do, and I suggest everyone to, don't focus on making 10 lakhs a year or 10 lakhs in a day or 10 lakhs in a week or month. Focus on doing a proper trade. कि अब मैंने सौदा ठीक से किया था क्या, या फिर इसने बोला मैंने ले लिया, वहां पे बह जा रहा था मैंने चल बहती नदी में थोड़ा हाथ धो लिया. So we will focus as AST traders, we will focus on each and every trade. ये ट्रेड मैंने क्यों लिया? Because इसका एक बेसिस था, बेसिस से एक बायस बना था अप या डाउन, और उसी तरह मैंने लॉन्ग या शॉर्ट किया. ये बेसिस को हम अभी बिल्डअप करेंगे. आज डाउ थ्योरी किया, कल सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन कैंडलस्टिक्स करेंगे, पैटर्न्स हाइकेनाशी कैंडलस्टिक्स करेंगे, इंडिकेटर्स करेंगे, स्ट्रैटेजीज करेंगे. ऑल दीज विल हेल्प अस. सो क्लास के बाद, प्रोग्राम के बाद, इफ यू से मैंने ब्रिटानिया खरीदा था और मैंने 5%, आई मेड 5% ब्रिटानिया, फिर मैं पूछूंगा बेसिस क्या था, आप एग्जैक्टली बोल पाओगे, इरेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट आपका 5% बने या 5% घटे. घटा कोई प्रॉब्लम नहीं है, काम ठीक से किया था ना. हाँ यार, बॉल तो बहुत अच्छा था, मैंने सब कुछ किया था, लेकिन वो एज होके कॉट बिहाइंड हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट बॉल अच्छा था, तुम वाइल्ड स्विंग कर रहे थे और बैट में लग के चला गया. इंडिया में तो सब लोग क्रिकेट देखते हैं. द बॉल कम्स रियली गुड, यू डू अ डिफेंस, लग के पीछे कैच हो गया, क्या अच्छा बॉल था यार, क्या अच्छा बॉल था. ठीक है, वही सेम बॉल तुम सी के तरह घुमाने का कोशिश कर रहे थे बैट, और लग के पीछे चला गया, तुम गाली किसको दोगे? बॉल अच्छा नहीं बोलोगे, बैट्समैन को गाली दोगे. क्या कर रहा है? राइट, यू अंडरस्टैंड? द सेम बॉल बट ट्रीटेड डिफरेंटली, you will say a different thing. So focus will be on the trade, based on the basis. Done. So day 1 AST, I think we are on time. So आप क्यों बोल रहे थे it's very important नहा धो के fresh clothes? उसको exaggerate करने के. तुम्हें नहाना अच्छा नहीं लगता? उसका लॉजिक मुझे समझ नहीं आया. अच्छा, वो उसको बोलते हैं डिकॉय इफेक्ट, ऐसा कुछ बोलते हैं. मतलब मेन मुद्दे से ना मैं ऐसा है 2-3 चीज बोल दूंगा कि उसी में आपका ध्यान चला जाएगा. जैसे फॉर एग्जांपल, मैं अगर आपको बोलूं कि हमेशा ये करना, तुम कभी नहीं करोगे. I've seen in my daughter and son, नहीं करता. मैं अगर तुम्हें बोलूं रात को सोते वक्त बंदर के बारे में मत सोचना, तुम देखना जिंदगी भर सोते वक्त बंदर ही आएंगे. मैं अगर बोलूं सोते वक्त राम का नाम लेना, नहीं लोगे. मैं अगर बोलूं सोते वक्त बंदर के बारे में मत सोचना,
डोंट थिंक ऑफ मंकीज. तुम्हारा ट्रेडिंग सक्सेसफुल हो जाएगा, तुम देखना. तुम्हारे जिंदगी में रात भर बंदर ही बंदर आएंगे. राइट. So day 1 we end here. Tomorrow 10 o'clock we will do some support resistance. Support क्या होता है, resistance क्या होता है और उसको कैसे डील करना चाहिए. Some basic trend lines and we'll start with candles or patterns. Right? Thank you. Thank you. Bye. Bye guys. So our session ends on 15th next month. The card came at 9 10 a.m.